morning, students. Welcome to the School of Open Learning online classes. Myself, Guneet Kaur, and I'll be taking your company law. Today, we will start the chapter 3 Formation of Company. Like in the previous two classes, we have studied about what is company, company ke meaning, company ke characteristics, and in the last class, we talked about different kinds of companies. Just to give you a brief, in the last class, we talked about what is a public company, what is a private company, what is OPC, one person company, dormant company, and all the different kinds of companies. I have already shared the link of last class notes in the question and answers chat box. You can open that link and download the file. So for today, we will talk about chapter 3, that is formation of company. How company is formed, what are the different steps in it, and like always, last 10 minutes, 10 to 15 minutes, we will be keeping for your doubts, anything that you want me to repeat. So let's start first with the formation of company. So students, as you can see it from the notes, formation of company. So there are two principal stages in the formation of company. So company को form करने के लिए दो important stages हैं. Number one is promotion and number two is incorporation. So ये दो major steps हैं जो company के formation of company की stages है. सबसे पहले promotion होता है and the next step is incorporation. So हम पढ़ेंगे promotion होता क्या है. Let's start with promotion. Promotion is the stage of conceiving an idea of forming a company to do a business and working on that idea. So students, जब आप अपने business के लिए अपना idea सोचते हो कि that मुझे ये वाला business करना है, ठीक है, and उस पे आप अपनी working start करते हो, तो उस stage को हम बोलते हैं promotion. जिस stage पे आप अपना thought process लगाते हो कि आपको किस किस बिजनेस से रिलेटेड अपना बिजनेस करना है या किस एरिया से रिलेटेड किस फंक्शनल एरिया से रिलेटेड आप अपना बिजनेस करना चाहते हो सो दैट इज द स्टेज ऑफ प्रमोशन एंड द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज टर्म्ड एज प्रमोटर. सो जो भी ये सारा काम करता है जैसे बिजनेस को इनिशियली स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर. सो प्रमोशन कौन सी स्टेज होती है द स्टेज ऑफ कंसीविंग एन आइडिया. तो जिस स्टेज पे आप सोचते हो आप अपना डिसाइड करते हो द स्टेज एट विच यू डिसाइड अबाउट विच बिजनेस यू वांट टू डू व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू फॉलो व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू मेक. So the promoter may work up the idea with the help of his own resources, influence, or competence, or he may necessarily take the help of technical and legal experts to bring a company into existence. So company को बनाने के लिए जितना भी before formation of company या before incorporation of company जितना भी process होता है ना वो सब कुछ कौन undertake करता है promoters. सो प्रमोशन आई थिंक आपको समझ आ गया जिस स्टेज पर हम डिसाइड करते हैं एक आइडिया जिस स्टेज पर हमें एक आइडिया आता है कि हाँ हमें ये वाली कंपनी खोलनी है या ये वाला कंपनी में हमें ये वाला टास्क करना है ये वाला बिजनेस करना है सो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रमोशन एंड जो ये काम करता है द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज नोन एज प्रमोटर. सो प्रमोटर के बारे में पढ़ते हैं. Promoter is a person who conceived the idea of starting a business, plans the formation of a company and actually brings it into existence. So जैसे हमने पढ़ा तो ये सारी ड्यूटी ये सारे टास्क कौन करता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रमोटर. So he is the person who conceives, who thinks about an idea of starting a business, plans the formation of a company and actually brings it into existence. तो ये सारे काम एक कंपनी को सेटअप करने में जो करता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर. So promoter is also called as the father of the company. See, promoter is also called the father of the company who see the prospects of gain in a business. So promoter कौन होता है? He is the father of the company who conceives the idea of starting a business, who do all the necessary things that needs to be done before the incorporation of the company.
सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ कि कंपनी की फॉर्मेशन में दो स्टेजेस हैं. नंबर वन स्टेज इज प्रमोशन. एंड प्रमोशन क्या होती है? द स्टेज जिसमें हम डिसाइड करते हैं व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी वांट टू डू. द स्टेज ऑफ कंसीविंग एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी. जिस स्टेज पे आप अपने डिसीजन को करते हो, डिसाइड करते हो कि हाँ आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है एंड यू वांट टू डू दिस बिजनेस. सो दिस स्टेज इज नोन एज प्रमोशन, राइट? एंड हु डज इट? प्रमोटर. जो ये सारे टास्क होते हैं कौन करता है? प्रमोटर. Next, so Section 2, subsection 69 of the Companies Act defines the term promoter. So I think आपको promoter का meaning clear हुआ. So promoter की definition Indian Companies Act 2013 में given है. So promoter according to the Companies Act who has been named as such in prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. So promoter कौन होता है? जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में मेंशन है. तो एक तो प्रमोटर वो हो गया. Second, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. So second, who is a promoter? जिसके पास कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स के रिगार्डिंग, कंपनी के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो जिसके कंट्रोल में है. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रमोटर. एंड सी, in accordance with whose advice, directors, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. This shall, however, not apply to a person who is acting merely in a professional capacity. So promoter और कौन होता है? जिसकी advice पर board of directors और जितने भी important your shareholders, everybody who works, so promoter वो head होता है. सो आप प्रमोटर हेड भी कह सकते हो, प्रमोटर को फादर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हो, राइट? सो प्रमोटर के रिगार्डिंग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन प्रमोटर हो सकता है एंड कौन प्रमोटर नहीं हो सकता. सो उसके रिगार्डिंग बताया हुआ है हमें दैट अ प्रमोटर नीड नॉट नेसेसरली बी एसोसिएटेड विद initial formation of the company. One who subsequently helps to arrange the floating of its capital will equally be regarded as promoter. So student, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर किसी पर्सन ने आपकी कंपनी का जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें हेल्प करा, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रमोटर है जस्ट बिकॉज उसने इनिशियल के कुछ स्टेप्स फॉलो करे. ही हैज टू हेल्प टू अरेंज द फ्लोटिंग ऑफ इट्स कैपिटल. जैसे अगर आपकी कंपनी की फॉर्मेशन है, आप कंपनी बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अ पब्लिक कंपनी, सो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो भी कैपिटल चाहिए तो उसमें भी प्रमोटर को हेल्प करना होगा उसके फंड्स अरेंज करने में. सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज इन कि अगर किसी ने इनिशियल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रमोटर नहीं है. प्रमोटर की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हैज टू हेल्प इन अरेंजिंग द फंड्स फॉर द कंपनी. So yeah, these are the basic important points regarding the promoter. And promoter does not include any person by reason of his acting in a professional capacity or persons engaged in procuring the formation of the company. A person who only advance money to promoters for meeting out preliminary expenses is not a promoter. अगर कोई आपको कह रहा है कि आपके अपने कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो भी आपके स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस हैं मैं उसके लिए आपको मनी देता हूँ कि आप अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मीट करो, आई विल गिव यू मनी फॉर दैट. अगर कोई पर्सन आपको मनी दे रहा है कि आप अपनी कंपनी के इनिशियल एक्सपेंसेस को कवर अप कर सको तो उसको हम प्रमोटर नहीं कहेंगे. सो प्रमोटर एग्जैक्टली क्या होता है हमें उसके फंक्शंस एंड ड्यूटी से बहुत ज्यादा क्लियरली समझ आएगा. सो लेट्स understand what are the functions of promoter. The main function of promoter to conceive an idea of starting a business and explore its possibilities. So I think ये आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया कि प्रमोटर कौन होता है, who conceives an idea of starting a business. ठीक है, जो स्टार्ट करता है बिजनेस को, ठीक है, एंड हु डू ऑल द नेसेसरी स्टेप्स जो करने होते हैं जैसे फंड्स अरेंज करना, डॉक्यूमेंटेशन करना. सो दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रमोटर.
first is very clear, who conceives an idea of starting a business, right? Next is to undertake detailed technical, economic, and commercial feasibility of the business propositions. Help of experts may be taken for that. So promoter वो ही नहीं है जो सिर्फ आइडिया रखता है कि ये हमें बिजनेस करना है. सेकंड पॉइंट कहता है फंक्शन का और क्या, प्रमोटर का और क्या फंक्शन है, वो अंडरटेक डिटेल टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल फीजिबिलिटी. वो टेक्निकलिटीज भी देखता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर से भी कंसिडर करता है कि हाउ मच फंड्स वी हैव, कमर्शियल फीजिबिलिटी को भी देखता है. तो प्रमोटर का एक ओवरऑल फंक्शन होता है. हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स में बी टेकन, एंड अगर ही नीड्स एनी हेल्प ही कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स. Third point, to conduct negotiations for the purchase of a business in case it is intended to purchase an existing business. For example, आप जो अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे हो उसमें आप एक और बिजनेस परचेज करना चाहते हो. सो उस बिजनेस को परचेज करने के लिए कोई भी नेगोशिएशंस हैं, कि कोई भी नेगोशिएशन इन टर्म्स ऑफ कि आपको कोई भी, आप दोनों पार्टीज ने कोई भी डिस्कशन करनी है, तो promoter can also do that. Promoter can also conduct negotiation for the purchase of a business. अगर कोई भी business purchase कर रहे हो आप अपने new company में, so that thing also can be done by a promoter. Next function of promoter is to collect the requisite number of persons, that is 2 in case of private and 7 in case of public company, who can sign the memorandum and articles of company and also agree to act as the first directors of the company. सो प्रमोटर का रोल ये भी है टू मेक श्योर, अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, सो हमें पता है कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वी नीड टू हैव मिनिमम 2 members, and in case of public company we need to have 7 members. So this is also one of the function of a promoter, to make sure that we have 2 persons for a private company for forming that, and to make sure that we have 7 persons in case of a public company. Next, to decide the following: the nature of company, the location, the amount and form of its capital, the underwriters or brokers, the bankers, the auditors, and the legal advisors. So almost everything has to be decided by a promoter. Promoter का सिर्फ यही रोल नहीं है कि promoter को सिर्फ आइडिया देना है, आइडिया सोचना है कि कौन सा बिजनेस करेंगे. He has to do lot of other things. उनको क्या क्या और ड्यूटीज है प्रमोटर की, उनको डिसाइड करना है कंपनी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ द कंपनी, किस सेक्टर में आपकी कंपनी फॉर्म हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, द लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. सो जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करोगे एड्रेस, उसकी लोकेशन, the amount and form of its capital, how much money is needed for a company, for the formation of the company. उसके regarding that decisions will be taken by a promoter. The underwriters or brokers, अगर आप अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हो तो उसमें आपको you need underwriters or brokers, so उनके regarding the decisions promoter लेंगे. The bankers, the auditors, the legal advisors, almost everything has to be done by a promoter. Next, to get the memorandum of association and article of association drafted. So students, ये दो बहुत important documents हैं. One is MOA and another one is AOA. So memorandum of association को हम बोलते हैं एक company का fundamental document, जिसमें company के purpose, company के objectives, सारी detail होती है memorandum of association, जिसको हम बोल सकते हैं primary document, and आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट. सो जो भी इम्पोर्टेंट मेन चीजें हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के पर्पस क्या है, वो सब एमओए में आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड रिमेनिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन कम्स अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो ये भी एक प्रमोटर का फंक्शन है, दैट उनको एमओए एंड एओए ड्राफ्ट कराना है, प्रिंट करना है. Another function of promoter is to enter into preliminary contract. अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी अंडरराइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है तो ये भी प्रमोटर का फंक्शन है. टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के फॉर्मेशन होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको पे करना, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्रमोटर.
To arrange funds required by the company, that is also a function of promoter. To arrange for the preparation of prospectus, it's filing, advertisement and issue of capital. जो जब भी आप कंपनी के शेयर्स कोई भी इशू करती है कंपनी, सो दे इशू अ प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर बहुत डिटेल में कंपनी के बारे में लिखा होता है, व्हाट आर द कंपनी गोल्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है एंड एवरीथिंग। सो इस प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना, उसकी फाइलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना एंड कैपिटल इशू करना, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्रमोटर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया कि प्रमोटर का रोल क्या होता है कंपनी की फॉर्मेशन में। सो अभी तक स्टूडेंट्स कंपनी फॉर्म नहीं हुई, अभी तक सिर्फ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला जो स्टेज है जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन। सो इनकॉर्पोरेशन जो हम अभी पढ़ेंगे वो स्टेज होती है जब कंपनी एक्चुअली फॉर्म हो गई है, कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस है। उसकी लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी के होने से पहले जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, आप फंड्स अरेंज करते हो, कंपनी की जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है आप वो करते हो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करते हो, लोकेशन डिसाइड करते हो, एंड एवरीथिंग बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज प्रमोशन, राइट? A promoter can neither be termed as an agent nor a trustee of a company which has not come into existence. So जो promoter है उसको हम agent भी नहीं कह सकते because अभी तक company form हुई नहीं। company जब incorporate हो जाएगी तो बोल सकते हैं that promoter is an agent of the company, but अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो प्रमोटर कैन नीदर बी टर्म्ड एज एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी। अभी कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई, एग्जिस्टेंस ही नहीं आई, तो हम प्रमोटर को एजेंट भी नहीं कह सकते, नीदर वी कैन कॉल हिम एज अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी। सो हम कहते हैं जो प्रमोटर्स होते हैं उनका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मीनिंग है दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। अब देखो कंपनी अभी फॉर्म इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं हुई, बट दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी। जो प्रमोटर्स है वो कंपनी के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो जो प्रमोटर का जो नेचर ऑफ वर्क होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूडिशरी नेचर। इसका मतलब क्या है? इट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस। ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। सब प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं? नंबर वन, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रमोटर्स शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। अब देखो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सारे टास्क कौन कर रहा है? प्रमोटर। सो ये प्रमोटर की ड्यूटी है कि वो बहुत ही अटमोस्ट फेथ पर, ट्रस्ट पर काम करें एंड दे डू नॉट मेक एनी secret profit at the cost of the company. Second, disclosure of material facts. अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट है, या आप कह सकते हो मटेरियल फैक्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर है तो उसका डिस्क्लोजर, उसके बारे में बताना किसकी ड्यूटी है? प्रमोटर की। It is the duty of the promoter to disclose fully all material facts relating to the formation of the company. So it is the duty, ये promoter की duty है to make sure जितनी भी important information है उसको